Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel to explore Pakistan globally. Today's our subject is Social Studies, Class 6 Pre-O level. You can see the title of the book, Oxford Book 1, Secondary Social Studies for Pakistan by Peter Moss. We will discuss today about chapter number 16, Early Pakistan, presented by Mr. Muhammad Imran Haider. First of all, we will discuss about the objectives to study this chapter, Early Pakistan. Learners, as you know very well about the early civilization of Indus region. This is very ancient civilization of the Asia, especially in the South Asia. Now we will discuss one by one about its points, very important points. Here are some brainstorming questions. These students, these questions are very eye-opener questions. Who were the first people to enter the subcontinent from northwest? Answer is the Aryans in 15th BCE through the Khyber Pass. In this point of view, if we talk about the settlement of the Indus Valley civilization, Khyber Pass is very important in this point of view because all the invaders enter to the subcontinent through this pass, Khyber Pass. Question number 2. Who followed them and settled here permanently? The people who followed them, there are a number of races who followed them. First, Aryans were entered in 1500 BCE. After them, Persians invade 500 BCE, Greeks 300 BCE, Scythians 60, Kushans 50, Huns 470 CE, Mongols 1220 CE, Mughals 1525 CE, and extras. There are many others peoples who invade the subcontinent through Khyber Pass. First of all, I want to tell you about what is invaders. To enter any area without permission is called invade. Those persons who entered in area are called invaders. Question number 3. Why did they settle here? Why they did settle here? Due to availability of basic needs of life. It's a very common thing. Humans want to settle there where the basic needs of life will be available. It's not a difficult, it's a very easy question. What attract them in this region? Which thing attract them? Always one thing keep in your mind कि इंसान उस जगह पे रहना पसंद करता है जहाँ पे उसको नीड्स ऑफ लाइफ फुलफिल होती नज़र आ रही हों, जहाँ उसको कोई सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा हो तो वो बड़ी हंसी खुशी से उस एरिया के अंदर रहना पसंद करता है. Pasture for their animals in the food of the animals. Scenic beauty means natural beauty, plenty of water and food, better opportunities as compared to other areas of the world where first they were living. Question number 5. Who were the original inhabitant of the subcontinents? Original inhabitant of the subcontinent. The original inhabitant of the subcontinent, the Dravidians. One thing can keep you in your mind, there is a little bit difference between inhabitants and habitants. Inhabitants are those peoples who are living in an area from very long time. आप ये कह लें कि वो जो
नेटिव तौर पे एक इलाके के अंदर बड़े टाइम से रहने वाले, नस्ल दर नस्ल रहने वाले जो लोग हैं उनको इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। हैबिटेंट्स कौन से होते हैं? जो माइग्रेट करके आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे एक और रेज होता है कि हु वर ड्रेविडियंस। ड्रेविडियंस का जो आंसर है इस क्वेश्चन का कि हु वर ड्रेविडियंस, वो इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं। द मैप ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, this chapter tells us about the people of the ancient Indus River who lived here through the thousands of years ago. Bronze Age 3300 to 1600 BCE, but mainly 26 to 1900 BCE. अब यहाँ पे जब हम BCE पढ़ते हैं तो जितना फिगर इस्तेमाल होता है वो उतना ही बहुत पुरानी बात होती, उतनी ज़्यादा एशियंट टाइम की बात हो रही होती। जितना फिगर ज़्यादा है वो इट मीन वो माजी करीब की बात है। और उसके बाद फिर कॉमन इरा स्टार्ट होता है, जिस तरह आज 2020 है। एंड देयर रिलीजन्स कल्चर्स अराउंड द सेम टाइम, 3 other great ancient civilization flourished here. Number 1, Nile Valley of Egypt. Number 2, between the two rivers Tigris and Euphrates in the Mesopotamia, present day Iraq. इराक के अंदर, इस बेल्ट के अंदर, ये दोनों रिवर्स के दरमियान एक सिविलाइजेशंस के लोग वहाँ पे आबाद हुई जिसको मेसोपोटामिया कहते हैं। एंड सी इज़ द होंग-हू वैली ऑफ चाइना। हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखें, जितनी भी पुरानी तहजीबें हैं जहाँ पे वो आबाद होती हैं उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? सबसे पहले बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वो हमेशा उन एरियाज़ में आबाद होना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ मिले। सेकेंडली, किसी भी तहजीब को आप डिस्कस करेंगे, सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ लोग जिस एरिया में आबाद हो रहे हैं वो हमेशा दरियाओं के साइड्स में आबाद हो रहे हैं, अलॉन्ग विद द रिवर साइड। रिवर्स के दरमियान, 2 दरियाओं के दरमियान की जगह भी हो सकती है, वो किसी भी एक एरिया के साइड्स के में भी आबाद होने की बात हो सकती है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, अब हम थोड़ा सा मैप के, वर्ल्ड मैप के जो सिविलाइजेशन का मैप है उसकी हेल्प से थोड़ी सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जो सिविलाइजेशन थी वो किस एरिया में, दुनिया के किस एरिया में जाके आबाद होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आवर सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यू कैन सी ओवर हेयर, दिस रिवर इज़ अ रिवर ऑफ इंडस। ये इंडस रिवर है, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। स्पेशली ये एरिया जो है वो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज और इंडस प्लेन्स का एरिया इस इंडस वैली का मरकज़ था। फिर उसके बाद रिवर जो 1-2 और रिवर्स हैं जो इंडिया के एरियाज़ के अंदर आ जा रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट इंडिया है। तो वहाँ पे जो रिवर्स हैं उनमें से गंगा रिवर है, उसके अलॉन्ग साइड में वो चीज़ें अब नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके वो शो करेंगे। अब उसके बाद होंग-हू वैली ऑफ चाइना, ओके, हम बात कर रहे थे चाइना की सिविलाइजेशन की, होंग-हू की वैली ऑफ चाइना की। आप यहाँ के देख लें कि जो चाइना के बिल्कुल ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर है। और फिर उसके बाद ऑक्सिस है, ये जो कैस्पियन सी है उसकी ईस्टर्न साइड में है। फिर उसके बाद मेसोपोटामिया देख लें, ये ईरान और इराक से ईरान की तरफ आते हुए इस एरिया में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अफ्रीका के अंदर जो सिविलाइजेशन थी वो नाइल वैली थी, नाइल वैली सिविलाइजेशंस। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ओल्मेक, लैटिन अमेरिका। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर
नोट्रो सिविलाइजेशन है। ये दुनिया की फेमस सिविलाइजेशंस हैं। अब नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इन्वेडर्स मूव ऑन द मोर फर्टाइल एरिया ऑफ व्हाट इज नाउ इंडिया एंड मैनी डिड सेटल इन द प्रेजेंट पाकिस्तान। The invaders belong to different races, religions, cultures, and the subcontinent and present day Pakistan are mixed bowl of people with a variety of languages, religions, and culture. This is the logic behind the local cultural differences, languages, रंग, नस्ल, ज़ात, ये चीज़ें जो हैं इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, बासियत तो हम एक कौम है और यही हमारा सबसे बड़ा राज और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार और यही हमारा एक यूनिटी का ज़रिया है। पर उसके बाद हम लोकल चीज़ों को देखें, उनके रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, बॉडी कलर हैं, वो डिफरेंट एरियाज़ के लोगों के डिफरेंट हैं। और यही वजह है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत अर्ली टाइम के अंदर बहुत से नस्लों के लोग खैबर पास से एंटर होकर सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, स्पेशली इन द पाकिस्तान। नाउ यू कैन सी ओवर हेयर I have taken this map from the chapter number 14 of 6th class. Aryans, Persians, Greeks, Antanis, Pathanis, Shans, Huns, Ghaznavid, Ghoris, Mongols, Mughals. ये डिफरेंट टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम सबसे पहले आर्यंस हैं, फिर ग्रीक्स हैं, पर्शियन हैं, ग्रीक्स हैं, ये लोग इस खैबर पास के थ्रू एंटर होके आबाद होना स्टार्ट हो गए। ये इनका सबसे बड़ा महवर था। ये इंडस रिवर है, ये इसको इन्होंने ज़्यादा हिट किया। फिर उसके बाद इस तरफ आते हैं गैंजेस रिवर की तरफ जो इंडिया के अंदर है। अब आप यहाँ पे खैबर पास देख सकते हैं, जो आपको आज का जो खैबर पास है उसका ज़रा इस्टेब्लिश हुआ उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के शहर पेशावर और अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल सिटी है काबुल उसको कनेक्ट करता है। ये दो ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा रास्ता है कम्युनिकेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द रिमेन्स ऑफ डेजर्टेड विलेज एंड टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर डिस्कवर्ड इन 1920 by R.D. बनर्जी एंड ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, द सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड अलोंग द रिवर इंडस फ्राम द फुटहिल्स ऑफ हिमालयास एंड द अरेबियन सी। अब यहाँ आपको थोड़ा सा मैं बैक लेके जाता हूँ, थोड़ा सा आपको ताकि समझा सकूँ। पहले मैप पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये है नॉर्दर्न एरियाज़, यहाँ पे हिमालयास माउंटेन्स हैं। अब यहाँ से वो कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होके अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है, ये एरिया सारे का सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कहलाता है। ओके, जो कि ये 1000 मील तकरीबन ये फासला बनता है। इसको अगर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये इससे ज़्यादा बन जाएगा। इट कन्वर्टेड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो एक्सटेंडेड ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द गेंजेस गंगा। गेंजेस प्लेन्स हैं, ये गंगा रिवर है, गंगा एंड जमुना रिवर्स बेसन्स। द पीपल लिविंग हेयर वेयर नॉन एज द्रविडियंस। अब पहला क्वेश्चन था कि हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, वो कौन से लोग थे, इनहैबिटेंट थे जो यहाँ के फेमस लोग हैं जो बड़े लॉन्ग टाइम से यहाँ पे, वो द्रविडियंस हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ एरियाज में रहते थे। एक इनका मरकज़ी आप ये कह लें कि गंगा रिवर के लॉन्ग साइड्स थी। फिर उसके बाद कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो हिस्टोरियंस, वो ये कहते हैं कि ये साउथ ऑफ इंडिया, मतलब ईस्ट और वेस्ट साउथ ऑफ इंडिया के एरियाज में, कोस्टल एरियाज में रहा करते थे, सेटल थे, और उसके इन सम पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। और उसके बाद ये मूव करते हुए मुख्तलिफ दुनिया के एरियाज में मूव करते हुए फिर दोबारा से आके सब कॉन्टिनेंट में एंटर होते हैं थ्रू खैबर पास। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्लेन टाउन्स। अब ये इनके मेन फीचर्स क्या थे?
प्लान टाउन्स थे। अब हम आज अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े ही एडवांस हो चुके हैं, हम प्लानिंग करके कॉलोनीज़ बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये आज से 5000 साल पहले के लोग भी इस तरह की चीज़ें करते थे। कंस्ट्रक्शन सेवरेज सिस्टम, द ह्यूज सेंट्रल बाथ, स्टोर रूम्स बट नो प्लेसेस। वो देखिए एक यहाँ पे आके हमें उनका जो सैनिटेशन का सिस्टम था, वाटर का, सैनिटेशन का, यहाँ पे आके हमें इम्प्रेस करता, बताता कि हाँ यार वो लोग जो थे वो वाकई ही बहुत एडवांस लोग थे, एडवांस सिविलाइजेशन थी। द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स पॉसिबली एंड असम्बली हॉल्स, वो मीटिंग्स के लिए असम्बली हॉल्स भी बनाते, मीटिंग रूम्स वेयर built on the raised ground. Some form of the writing has been discovered on the clay seals tablets, but it has not been deciphered, been interpreted. उनको आज तक इंटरप्रेट नहीं किया जा सका, उनको रीड आउट नहीं किया जा सका, क्योंकि देखें वो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तारीख़ की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत पुरानी तारीख़ है। आज किसी बंदे के पास कोई ऐसा जादू नहीं है, नॉलेज नहीं है कि जो उनकी राइटिंग्स को जो दीवारों के ऊपर वो नोट करते थे या जो कोई उनकी और बाकियात मिली हैं, उनके राइटिंग स्टाइल तो मिल गया, लेकिन उसको रीड करना आज किसी के बस का काम नहीं है। Remains of grains, cotton cloth and basic tools show that farming was practiced here. No coins have been discovered, which means that payments and trade were carried out using grains and simple goods. However, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात फार्मिंग की कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो फार्मिंग स्टार्ट होती है सब कॉन्टिनेंट में, अब उनकी कुछ रिमेन्स देख के फील होता कि वो फार्मिंग करते थे, और हाँ वाकई करते थे। और वहाँ पे कॉटन, आपको मालूम होना चाहिए जो कॉटन है दुनिया के अंदर सबसे पहले वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया में ही कल्टीवेट हुई थी, और यहाँ से मूव करके फिर रेस्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मूव होती है। जिस तरह गंदम सबसे पहले जो थी वो तुर्की के अंदर काश्त होना स्टार्ट हुई थी। However, pottery, clay, toys, small bronze and copper statues and jewelry using semi-precious stones, beads, silver and also gold have been found. Some of these are displayed at the small museum near the Mohenjo-daro ruins. Mohenjo-daro ruins के साथ एक म्यूज़ियम भी है, वहाँ पे आप ये चीज़ें हम आज भी देख सकते हैं कि वहाँ ये चीज़ें उनकी जो डिस्कवर की हुई हैं वो आज भी उनके रिमेन्स मौजूद हैं। अब इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाएं कि हाउ दे वर एडवांस, कितने वो एडवांस लोग थे। मोहनजोदड़ो जी, मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ डेड, इनको मुर्दों का शहर भी, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इट इज़ an archaeological site, the province of Sindh, Pakistan, built around 2600 BC. It was one of the largest settlement of the ancient Indus Valley civilization and one of the world's, दुनिया की और एशिया की जो है ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। मोहनजोदाड़ो was discovered, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये 1920 में हुई थी, कुछ लोग 1922 में कहते हैं, इंडियन ऑफिसर के ज़रिए हुई थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो, द मोस्ट एशियंट सिटी ऑफ पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो इज़ नियर लाड़काना ऑन द रिवर इंडस एंड हरप्पा इज़ ऑन रिवर रावी, ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये इंडस रिवर है, यहाँ से मूव करता हुआ नीचे जा रहा है, और उसके बाद जो आपको कहा था गंगा रिवर, गेंजे रिवर, इसको आप देख सकते हैं इस मैप के ज़रिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इंडस रिवर के ऊपर, इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी रावी रिवर के ऊपर। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये रावी रिवर है। अब ये आपको जो ये साइट है, सॉरी इंडस रिवर के मोहनजोदड़ो की जो साइट है आपको रिवर इंडस के वेस्ट साइड में देखने को मिलेगी, उसके ईस्टर्न साइड में नहीं, उसके वेस्टर्न साइड में
आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना है और लाड़काना के साउथ में ये मोहनजोदड़ो साइट लाया करती है। हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट इन पंजाब पाकिस्तान अबाउट 25 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ साहिवाल। तो थोड़ा सा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं वो मोहनजोदड़ो की रीड कर रहा हूँ लास्ट स्लाइड में। तो ये हड़प्पा इसमें, ये साहिवाल में, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साहिवाल है, ये चीचावतनी है, ये कमालिया है, इससे आगे टोबा फैसलाबाद थोड़ा इस साइड पे आ जाता है। अब ये रिवर जो आपको नज़र आ रहा है ये रावी रिवर है, इसके साउथ में है, साहिवाल के वेस्ट में है, यहाँ पे ये मुल्तान रोड है, इसके थोड़ा सा ऊपर करके ये साइट लाया करती है। द साइट टेक्स इट्स नेम फ्राम द मॉडर्न वैली लोकेटेड नियर द फॉर्मर course of Ravi River, which now 8 kilometers to the north, and current village of Harappa is less than 1 kilometer from ancient site। अब आप इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को देख सकते हैं, उनके कंस्ट्रक्शंस स्टाइल को। ये देखें, ये एक आर्टिफिशियल पिक्चर बनाई हुई, लेकिन एक इमेजिनेशन उन्होंने एक विजुअल्स पेश किया कि इस तरह कि वो मीटिंग हॉल्स, मीटिंग कॉर्नर्स, रूम्स। अब यहाँ पे आप देख लें उनके, अब एक एरिया बहुत ऊंचा है, दूसरा स्टेयर्स बना के वो डाउन एरिया, डिफेंस लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। उनकी स्ट्रीट लाइट्स, उस टाइम की जो स्ट्रीट्स जो थी काफ़ी वाइड हुआ करती थी। और उसके बाद सीवरेज का निज़ाम और उनके राइटिंग स्टाइल्स आप ये देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें उनकी डिस्कवर तो हुई हैं, लेकिन इनको प्रेडिक्ट करना अभी किसी के बस की बात नहीं है। ये थी चीज़ें अर्ली पाकिस्तान, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली के बारे में। तो अगर कोई इसमें ऊंच नीच हो गई होगा तो उसको फॉरगिव कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।